ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں اس علاقے میں رپورٹنگ کے لیے جانا چاہیے۔ منتہا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ علاقہ نا، مطلب کہ وہاں پردے کا خیال کیا جاتا ہے، لڑکیوں کا ایسا گھومنا پھرنا پسند نہیں کیا جاتا۔ تم وہاں کیمرہ لے کر جاؤ گی تو وہ سب لوگ پھر عجیب عجیب سوال کریں گے، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاگل لڑکی، ایک رپورٹ کے لیے تم اپنے آپ کو اتنے بڑے مسئلے میں ڈال دو گی؟ تم تو نا بے فضول میں ڈرا رہی ہو۔ وہ لوگ انسان ہی ہیں نا، کوئی جن بھوت تو نہیں جو ہمیں کھا جائیں گے۔ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، علاقہ وزٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت جگہ ہے وہ، وہاں کی فوٹوز بنانا، پکچرز کلک کرنا، بھائی اس میں کیا غلط بات ہے؟ تم پاگل ہو، تم میری بات نہیں سمجھ رہی۔ وہاں پر اجازت نہیں ہے جانے کی، کسی کو اجازت نہیں ہے، ردا نے کہا۔ وہاں کے جو سردار لوگ ہیں ان کا پورا علاقہ ان لوگوں نے خریدا ہوا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا فضول کی باتیں کر رہی ہو تم، ردا بولی۔ منتہا میں فضول کی باتیں نہیں کر رہی۔ پچھلی بار دوسری کمپنی کا ایک امپلائی گیا تھا وہاں پر وزٹ کرنے، اس سے پہلے کہ وہ وہاں کی فوٹوز ویڈیوز کلک کر کے واپس آتا، اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر کے اسے وہیں قید کر لیا۔ اتنی مشکل سے اس کو وہاں سے آزادی دلوائی۔ وہ لوگ شیطان ہیں، شیطان۔ ان کے نزدیک انسان کو قید کرنا ہی صحیح کام ہوتا ہے۔ انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کے علاقے کی تصویریں ویڈیوز باہر جائیں۔ منتہا نے کہا، واو یار گریٹ، اب تو میرے اندر نا بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے کہ میں اس علاقے میں جاؤں اور وہاں کی فوٹیج لے کر آؤں اور دنیا کو دکھاؤں کہ ہمارے علاوہ دنیا میں کس طرح کے لوگ بھی ہیں، پرانے دقیانوسی سوچ رکھنے والے۔ ردا نے حیرت سے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا اور بولی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں تمہیں کیا بتا رہی ہوں اور تم کیا پلاننگ کر رہی ہو؟ میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ وہاں کے سردار لوگ کسی بھی انسان کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے۔ وہ ان لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ لوگ خوش ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ منتہا نے کہا، میں وہاں جا کر رہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم میرے ساتھ چلو گی تو بتاؤ، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ردا نے کہا، نہ بابا نہ، تمہیں شوق ہے نا موت کے کنویں میں کودنے کا، تو تم کودو، میں نہیں جاؤں گی۔ منتہا نے فضا کو دیکھا اور بولی، تم کیسی دوست ہو؟ تمہیں تو اتنے پسند ہیں پہاڑ، جنگلات، جگہوں کا وزٹ کرنا، اور اب انکار کر رہی ہو؟ ردا نے کہا، پسند تو مجھے جب ہے نا جب میں زندہ رہوں، جب میں زندہ ہی نہیں رہوں گی تو مجھے کیا اچھا اور کیا برا لگے گا۔ منتہا نے کہا، تو یعنی کہ تم نے سوچ لیا کہ میں وہاں جاؤں گی تو مر جاؤں گی؟ منتہا کیا ہو گیا ہے، تم اتنی منحوس باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ بس میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہاں جانا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں تو تمہیں بھی یہی کہتی ہوں، میری دوست پلیز نہ جاؤ۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں، وہاں یہ پہاڑ ہے نا، وہاں بھی تو خوبصورت مناظر ہیں۔ منتہا نے کہا، نہیں، اب تو میں سوات کے اسی علاقے میں جاؤں گی اور وہاں کی فوٹیج لے کر آؤں گی۔ تم سے میں 1 مہینے بعد ملوں گی۔ ردا نے حیرت سے اس سر پھری لڑکی کو دیکھا تھا جو کہ جان پوچھ کر یہ سب کر رہی تھی۔ ردا نے منتہا سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم وہاں جاؤ گی نا تو مجھ سے رابطہ ختم کر کے جانا۔ منتہا نے 1 منٹ لیا اور پھر بولی، چلو ٹھیک ہے، جب میری نا پروموشن ہو جائے گی نا تم خود مجھے مبارکباد دینے آؤ گی۔ دیکھنا کتنی ورلڈ کلاس فوٹیج لے کر آؤں گی میں اس جگہ کی۔ ایسے کیسے غنڈہ گردی چل سکتی ہے؟ ردا نے کہا، میری باتیں سن کر تم وہاں جا بھی رہی ہو نا تو کسی بھی معاملے میں دخل اندازی مت کرنا، خاموشی سے اپنی پکچرز اور ویڈیوز کلک کرنا اور واپس آ جانا۔ وہاں کے بارے میں کوئی زیادہ آرٹیکل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منتہا نے آگے بڑھ کر ردا کو گلے لگایا اور بولی، ٹھیک ہے میری جان، اب میں جا رہی ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، اور گھر پر میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا
तुम भी चक्कर लगाती रहना। बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने नर्स को कह दिया है, वो उनका बहुत ख्याल रखेगी। 1 हफ्ते बाद मैं आ जाऊंगी। रिदा ने कहा, ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना, मैं तो तुम्हें आखिरी मर्तबा फिर कहूंगी। मुंतहा ने कहा, बस अब मनुसियत की बातें मत करो, मुझे जाने दो। अल्लाह ने कदम उठवाया, देखना मंजिल अच्छी होगी। ये बात कहकर मुंतहा अपना बैग लेकर ऑफिस से निकलते चली गई थी, जबकि रिदा ने उसके पीछे से उसकी खैरियत की बहुत सी दुआएं मांगी थी। जैसे जैसे सवात की वादियां करीब आ रही थीं, मुंतहा को सर्दी लगना शुरू हो चुकी थी। उसका शुरू से यही शौक था कि वो पूरी दुनिया घूमती। तभी तो मुंतहा ने एक रिपोर्टर के तौर पर नौकरी शुरू की थी। वो पाकिस्तान का विजिट कर रही थी, वहाँ के आर्टिकल्स लिखती, वहाँ की रिवायात के बारे में लिखती। उसकी प्रमोशन बहुत करीब थी। सवात के एक इलाके का उसे पता चला कि वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के लोग रिपोर्टर्स को इलाके में आने जाने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि उन लोगों को लगता है अगर सवात की खूबसूरती के बारे में दुनिया को पता चल गया तो यहाँ की खूबसूरती को बर्बाद कर देंगे। मुंतहा ने ये सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर से हासिल की थी। अब उसने सोच लिया उसे किसी तरह इस इलाके में घुसना है। अगर वो सीधा एक रिपोर्टर के तौर पर उस इलाके में जाएगी तो वो अच्छी तरह जानती थी वहाँ के लोग उसके साथ किस तरह का सलूक करेंगे और वो अकेली किस किस के सामने लड़ेगी। इसीलिए मुंतहा ने सोचा वो अपनी सीनियर रिपोर्टर के साथ वहाँ की रिहायशी बनकर जाएगी। ये बात उसके लिए बहुत आसान साबित हो रही थी, क्योंकि वो लड़का तो यहाँ की पहले कवरेज करके जा चुका है। उसने मुंतहा को बहुत सी बातें बता दी थी जो कि उसके बहुत काम आने वाली थी, और रिपोर्टर ने मुंतहा को साफ अल्फाज में कह दिया था कि वहाँ के किसी भी मामले में दखल अंदाजी ना करे। कोई कुछ भी करता है तो खड़ी होकर तमाशा देखे और अपनी कवरेज करके जल्द अज जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करे। मुंतहा चूंकि भेस बदल कर जा रही थी तो उसने अपनी पहचान भी बदली। वो शहर से सवात की वादियां घूमने के लिए जा रही थी। वहाँ की औरतों के साथ वो रह रही थी। उसने अपनी पहचान छुपाते हुए उस औरत को भी अपनी फुफ्फो बताया था और एक रिश्ता बना लिया था। अपना कैमरा छुपा कर रखती थी और अपना हुलिया भी बदल लिया था। लेकिन उसकी चांद जैसी जवानी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सबसे खूबसूरत उसकी सुरमई बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो कि हर वक्त कुछ ना कुछ सवाल करती हुई महसूस होती थीं। मुंतहा ने सोच लिया था कि वो यहाँ की कवरेज करके रहेगी। इस काम को मुंतहा ने अपनी जिद बना ली थी। नताइज को सोचे समझे बगैर वो सवात के अंदर दाखिल हो चुकी थी। सवात सच में बहुत खूबसूरत जगह थी। तुम पागल तो नहीं हो गई रिदा? ये बात तो मुझे अब बता रही हो। पहले रिपोर्टर सज्जाद गया था, जिसकी हमने इतनी मुश्किल से जमानत करवाई थी। तुम्हें याद नहीं कि उन लोगों ने उसके साथ किस तरह का सलूक किया था? उसे किस तरह बेड़ियों में जकड़ कर बांधा हुआ था, और तुमने एक लड़की को वहां भेज दिया, वो भी मेरी इजाजत के बगैर। उस वक्त उनकी कंपनी के मैनेजर रिदा से बहस कर रहे थे, जबकि रिदा हैरान खड़ी मुंतहा को दिल ही दिल में गालियां दे रही थी। मुंतहा ने रिदा को बताया था कि सर ने उसे परमिशन दे दी है और सर के कहने पर ही मुंतहा अकेली जा रही है। लेकिन ये बात काफ़ी हैरान कुन थी रिदा के लिए, मगर वो यकीन कर गई, क्योंकि वो जानती थी कि सर टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब मुंतहा की असलियत सामने आई थी कि उसने झूठ बोला था, तो रिदा को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी फिक्र भी बहुत ज्यादा हो रही थी। वो लड़की सोचे समझे बगैर उस खूनख्वार जंगल में उतर चुकी थी, जहां शिकारी उसका शिकार करने के लिए बैठे थे। मैनेजर ने जब रिदा को खामोश देखा तो बोला, जल्द अज जल्द मुंतहा को वापस बुलाने की तैयारी करो। वहां उसका अकेले रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जल्दी से तुम एक टीम तैयार करो, वो मुंतहा को वहां से लेकर आएगी। जबकि रिदा ने एक और बुरी खबर अपने मैनेजर को सुनाई और बोली, सर मुंतहा ने अपना सिम कार्ड यहीं रख दिया है, उससे राब्ता करने का कोई तरीका नहीं। मैनेजर ने अपना लैपटॉप उठाकर जमीन पर मारा और बोला, कोई बड़ी खबर है तो वो भी सुना दो। तुम पागल हो? तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? अब कोई भी मसला हुआ तो कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी।
क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गई थी। रिदा अचानक सर के इस तरह गुस्सा करने पर बहुत ज्यादा डर गई और फिर बोली, सर मेरी कोई गलती नहीं, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। सर ने कहा, उसे समझाने की कोशिश एक मर्तबा तुम मुझे तो फोन करके बता सकती थी, मैं उसे नौकरी से निकाल देता। मुझे अच्छी तरह पता है कि वहां के लोग किस तरह के हैं, मैं खुद वहां पर स्टे करके आया हूं। एक मर्द के लिए वहां सरवाइव करना मुश्किल है, तो सोचो वो एक लड़की है, और वो भी वो लड़की जिसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं। न जाने वो कहाँ गई होगी, क्या कर रही होगी, सेफ भी है या नहीं। तुम अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो जो सवात के करीब करीब रहते हैं। वहां मुझे खुद जाना पड़ेगा क्योंकि मुंतहा की फिक्र मुझे बहुत हो रही है। अल्लाह पाक बस हम पर रहम करे। बाकी तुम लोगों ने तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मुसीबत को ऑफिस तक लाने में। रिदा खामोशी से उनकी ऑफिस से निकल कर आ गई थी। रिदा को तो हैरत हो रही थी कि वो लड़की कितनी चालबाज है, दोस्त को नहीं पहचान सकी। रिदा ने बीजान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मुंतहा अपनी दोस्त के घर कुछ दिन रहने के लिए जा रही है, वहां उसे कुछ काम है। रिदा ने अपना सर थाम लिया था। ये लड़की इस कदर बड़ी प्लानिंग के साथ गई है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा और क्या नहीं। रिदा ने सारी इंफॉर्मेशन अपने मैनेजर को भेजी और खुद जल्दी से अपने घर के लिए निकली, क्योंकि अगर वो मैनेजर की आंखों के सामने रहती तो वो उसे कच्चा चबा जाता। बेटा तुम बहुत प्यारी है, तुम्हें पता है। मुंतहा ने मुस्कुराकर उस औरत को देखा और बोली, आप भी बहुत प्यारी हैं, बल्कि आप लोगों का ये इलाका, यहाँ के लोग, हर एक चीज बहुत खूबसूरत है। उस प्यारी सी औरत ने कहा, लेकिन तुम यहाँ करने क्या आई हो? तब मुंतहा ने बताया कि मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ। यहाँ इजाजत नहीं है ना घूमने की किसी को, इसीलिए मैंने आपसे रिश्ता बनाया। आप किसी को मत बताइएगा कि मैं कौन हूं, मेरे लिए मसला हो जाएगा। उस औरत ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम परेशान हो, हम किसी को नहीं बताएगा। हमें तो बहुत खुशी हुई कि तुमने हमको अपनी मेहमान नवाजी का मौका दिया। ये पठानों का इलाका है, यहाँ पर गैरत के नाम पर बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, इसलिए तुम भी संभल कर रहो। अपना हुलिया ऐसा ही रखना जैसे गांव की औरतों का है। मुंतहा ने कहा, जी देखें, मैंने यहाँ जैसी औरतों जैसा लिबास पहना है। तब उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, लिबास से कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें सबसे मुनफरिद दिखा रहा है। मुंतहा ने कहा, तो मैं क्या करूं? तब उस औरत ने कहा, कुछ भी मत करो, बस अपने पर्दे का ख्याल रखना ताकि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, और हमें भी किसी को सवाल जवाब के समंदर में ना डुबा देना। मुंतहा ने कहा, जी बिल्कुल। वो औरत उठकर चली गई थी तो मुंतहा ने अपना हिडन कैमरा निकाला था और उसे अपने सर पर मौजूद टोपी के अंदर बटन के तौर पर लगा लिया था। मुंतहा उस घर की छत पर जाकर चारों तरफ के मनाजिर देख रही थी, बल्कि वो देख कम रही थी, अपने कैमरे में कैप्चर ज्यादा कर रही थी। उस औरत ने जब मुंतहा को आवाज दी तो मुंतहा नीचे चली गई। तब उस औरत ने कहा कि तुम असर के बाद छत पर ना जाया करो। खान साहब के मुलाजिम इस बात का बुरा मनाते हैं कि जवान जहान बेटियों को छत की मुंडेर पर खड़ा किया हुआ है। मुंतहा ने सोचा यहाँ का माहौल तो उसकी सोच से भी ज्यादा दकियानूसी था। अपने माँ बाप की मौत के बाद मुंतहा बीजान के साथ उनके घर में रहती थी, नौकरी की, और अब उसे जगह जगह घूमने का शौक था। बीजान बगैर माँ बाप की बच्ची की बहुत अच्छी परवरिश करना चाहती थी और वो इस हद में कामयाब भी हो गई थी। लेकिन मुंतहा की गंदी आदत ये थी कि वो जो ठान लेती वो करके छोड़ती थी। कोई भी जिद वो अपनी कभी अधूरी नहीं छोड़ती थी, चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। इस वक्त भी वो अपनी बीजान को धोखे में डालकर पठानों के इलाके में यहाँ से वहाँ डोलती फिर रही थी और हर एक चीज की कवरेज कर रही थी। हकीकत में तो वो वहां पर उस औरत की भतीजी बनकर आई थी, लेकिन लोग परियों जैसा हुस्न रखने वाली लड़की को हैरान कुन नजरों से देख रहे थे। मुंतहा हरे रंग के पठानी फ्रॉक में चेहरा ढांपे, अपनी सुरमई आंखों में काजल की धार लगाए, सवात में मौजूद खूबसूरत मनाजिर को भी मात दे रही थी। वो वाकई हुस्न का एक शाहकार थी।
वहां की लड़कियां भी कम खूबसूरत नहीं थीं, लेकिन मुंतहा की उनमें से किसी से दोस्ती हो गई थी। लेकिन ये दोस्ती का मतलब सिर्फ उनके इलाके के बारे में खबर रखना और खूबसूरत मनाजिर की मालूमात हासिल करना था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। वहाँ की लड़कियां बहुत इश्तियाक से मुंतहा के बोलने के तरीके को देख रही थी, क्योंकि वो पठानों का इलाका था। मुंतहा की ज़बान उनसे नहीं मिल रही थी, लेकिन वो फिर भी टूटा फूटा पठानी बोलती उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सभी लड़कियां उस वक्त एक तरफ दरख्त के नीचे बैठी वहां के सरदार की बेटी की शादी के बारे में बातें कर रही थी। मुंतहा इश्तियाक से उनकी बातें सुन रही थी। एक लड़की जिसका नाम बारबीना था, वो बोली, तुमको पता है जो सरदार की बेटी ने अपनी शादी पर सूट पहना था, वो कहाँ से बन कर आया था? अम्मा बता रही है, अगर पूरे घर की बत्तियां भी बुझा देते फिर भी वो चरागों की तरह रोशन था। इतना खूबसूरत जोड़ा बनवाया था सरदारनी ने अपनी बेटी के लिए। दूसरी लड़की जिसका नाम गुलपरी था, वो बोली, तुम तो ऐसे कह रहा है जैसे ये अनोखी बात हो। तुम्हें नहीं पता जब सरदारनी अपने बेटे की शादी की थी तो अपनी बहू के लिए कहाँ से जोड़ा मंगवाया था? वो भी तो कितना हसीन लग रहा था। वलीमे पर सबको दावत पर बुलाया था, तब हमने देखा भी तो था। मुंतहा उन लोगों की तजस्सुस भरी बातें सुनकर बोली, तो उन लोगों के पास बहुत ज्यादा दौलत है जब वो इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनता है अपनी शादियों पर। तब बारबीना मुंतहा के करीब होकर बोली, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसा है उन लोगों के पास। उनका घर तुम देखेगा ना तो वो हवेली ऐसा लगता है मानो कोई महल हो। मेरी तो हसरत ही रह गई पूरा देखने की। कभी किसी तकरीब के मौके पर जाता भी है तो हॉल से ही वापस आ जाता है, क्योंकि अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। वो लोग अभी बातें कर ही रही थी जब अचानक बारबीना की अम्मा आकर बोली, तुम तो बैठे हुए बातें बना रहा है, वहां जिरगे का फैसला होने वाला है। सारा मर्द यहां से गुजरेगा, क्या देखेगा? उठो यहां से, चलो अपने अपने कोंटों पर बंद हो जाओ। मुंतहा भी वहां से उठकर खामोशी से अपने घर की जानिब चलने लगी थी, लेकिन एक और कड़ी उसके हाथ लग गई थी। हवेली को देखना और इतनी ज्यादा जायदाद होने का मकसद क्या था? अभी भी इसी बारे में सोच रही थी जब अचानक शोर हुआ कि बड़े पीपल के दरख्त के नीचे जिरगा बैठा है। मुंतहा अपने दुपट्टे की ओट से गली के नुक्कड़ से उस दरख्त को देखने लगी, जहां काफी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लोगों को इकट्ठे होने के 10 मिनट बाद वहां पर बड़ी लैंड क्रूजर गाड़ियां आकर रुकी। एक के बाद एक 5 गाड़ियां वहां रुकी थी। पहली गाड़ी से रोबदार शख्स, पाँव में खेड़ी पहने, कॉटन के सूट में, माथे पर पग सजाए वहां के सरदार साहब लोगों के हुजूम को चीरते हुए दरख्त के नीचे शाही कुर्सी पर जा बैठे। सब लोगों ने शफकत से उनके हाथ चूमे थे, जो कि मुंतहा को बहुत ही नागवार गुजरा था। अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ था। उनके बाद बहुत से सरपंच उनके मुकाबिल जाकर बैठ चुके थे। फैसला होना शुरू हुआ। एक तरफ के उन लोगों ने कहा कि उनकी बेटी को दूसरी तरफ के सरपंच के भाई के बेटे ने वरगलाया और घर से भागने पर उसको उकसा रहा था। वो तो वक्त रहते हुए लड़की के चचा को पता चल गया, जो कि अनहोनी से बच गई, वरना ना जाने क्या होता। जबकि लड़की की तरफ वालों ने कहा यह सरासर झूठ है, वो लड़की खुद प्यार की पींगे बढ़ा रहा था और जब पकड़ा गया तो सारा इल्जाम हमारे बेटे पर लगा दिया। ये सब कुछ गलत है, सरासर इल्जाम लग रहा है। जबकि दोनों तरफ के हरीफों को यकदम गुस्से में देखकर सरदार ने अपना हाथ खड़ा किया और सब लोग खामोश हो गए। और सरदार ने कहा, उस लड़का और लड़की को बुलाया जाए। थोड़ी देर के बाद पर्दे के पीछे एक लड़की आई और एक लड़का, जो कि शक्ल से ही पठान लग रहा था, और लड़का अपने हुस्न का खुद ही शाहकार था। सरदार ने उस लड़की से कहा, हम तुमसे सिर्फ एक मर्तबा पूछेगा, हमको सच बताना, क्या ये सब कुछ सच है या झूठ जो कि तुम्हारा घर वाला कह रहा है? उस लड़के ने तुमको वरगलाया है? तब उस लड़की ने कहा, जी सरदार, ये लड़का मुझे वरगलाता है, आते जाते मेरा पीछा करता है, घर की छतें फैलांग कर हमारे घर आता है। मैंने जब इस बात की नहीं माना तो ये मुझे बदनाम करने की धमकियां देने लगा। जबकि दूसरी तरफ वो लड़का सुर्ख सफ़ेद रंगत के साथ
अपनी नीली आंखों से पर्दों के पीछे खड़े हुए उस वजूद को घूर रहा था। सरदार ने उसे तैश में देखा तो बोला, अब तुम बताएगा कि ये लड़की जो कह रहा है ये सब सच है या झूठ। तब उस लड़के ने कहा, सरदार हम मरकर दोबारा भी पैदा हो जाएगा ना, तब भी इस बात से पीछे नहीं हटेगा कि ये लड़की झूठ बोल रहा है। आप जो फैसला करेगा हमको मंजूर है। ऐसी दगाबाज लड़की के साथ हमको एक पल नहीं गुजारना। अच्छा हुआ वक्त रहते इसने अपना असलियत हमको दिखा दिया। हम बहुत शर्मिंदा है कि हम इस लड़की के लिए अपने कबीले से बगावत करने का सोचा। आप कोई भी फैसला करेगा उससे पहले आप ये खत जरूर पढ़ लें। ये खत भी क्या हम इससे जबरदस्ती लिखवाता था? सरदार ने वो खत पढ़े तो उस लड़की के बाप से कहा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेगैरत लोगों की तरह अपनी इज्जत उछालने के लिए तुम जिरगे में आ गया। ये बगावत का खेल कब खत्म होगा? अपनी बेटी को समझाओ और बांध कर रखो कि अपनी हद में रहे। उस लड़की का बाप सरदार के पांव में सर रखते बोला, मैं इस लड़की का बाप हूं सरदार, हमें माफ कर दें, हम बेटी की मोहब्बत में अंधा हो गया था। सरदार ने एक झटके से अपना पांव उस शख्स से छुड़ाया और बोला, अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हारी बेटी की शादी माली के बेटे से कर दी जाएगी जिसके 2 बच्चे हैं और उसकी बीवी मर गया है। इस फैसले पर हम किसी किस्म का कोई समझौता या सवाल कर नहीं बर्दाश्त करेगा। ये बात कहकर जिरगा खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए, जबकि मुंतहा सख्ते की हालत में वहां खड़ी की खड़ी रह गई। किस कदर घटिया रस्म थी। मोहब्बत के मामले में लोग इस कदर सफाक थे। वो लड़की जो कि अपने घर वालों से डर कर मोहब्बत से इनकार कर रही थी, उसका कोई भी मददगार नहीं उठा था, जबकि उस लड़के पर मुंतहा को रह रह कर गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था अभी जाकर उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे, जो अपनी मोहब्बत को यहां तक ले आए। लेकिन फिर मुंतहा कुछ सोचकर खामोश हो गई। लेकिन अचानक उसके जहन में तरकीब सूझी। उसने सोचा क्यों न यहाँ की सारी रिकॉर्डिंग करके एक फुटेज बनाई जाए और शहर जाकर इनको शेयर किया जाए ताकि लोगों में शऊर पैदा हो। इस तरह की रस्मों से लोग परहेज करना शुरू करें। लोगों को ही लोगों का हुक्मरान बनाया हुआ है। यहाँ तो सब लोग खामोशी से बुद्ध बने उस इंसान का फैसला सुनकर जो कि उन्हीं के जैसा एक आम इंसान था। फर्क सिर्फ दौलत का था या उनके दिमाग के फतूर का। दौलत इंसान को कभी भी इंसान बड़ा नहीं बनाती। इंसान में इंसानियत होना जरूरी होती है। मुंतहा ने सोच लिया था कि वो यहाँ मजीद 1 हफ्ता और रुकेगी और अपनी मुंह बोली पुप्पो से पूछा कि यहाँ पर हर रोज लगता है? तो उसकी पुप्पो ने बताया, नहीं, जिरगा हफ्ते में 2 बार लगता है। अगर अचानक कोई मसला हो जाए तब हफ्ते में 3-4 मरतबा भी लग जाता है। मुंतहा ने कहा, अचानक का फैसला कैसा? तभी उसकी पुप्पो ने उसकी प्याली में चाय डालते कहा, यही कि जैसे कि दूसरे कबीले में लड़ाई हो जाए, खेत में आग लगा दी जाए या किसी की घर चोरी हो जाए, किसी की लड़की भागती हुई पकड़ी जाए, तो उसके फैसलों में देर नहीं की जाती और जल्द अज जल्द जिरगा बिठाया जाता है। मुंतहा ने कहा, आपको नहीं लगता कि ये अजीब सी एक रस्म है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? कोई भी इंसान अपनी जिंदगी का खुद फैसला कर सकता है। तब उस औरत ने मुंतहा को देखा और बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हर जगह फैसला करने के लिए कोई बड़ा मुअज़्ज़िज़ लोग होना चाहिए जो कि हमारे सुख का साथी हो और हर एक चीज का मालिक भी। इस गांव में जब भी बाढ़ आता है, जलजला आता है, कोई भी मसला होता है तो सरदार लोग भी सबसे आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं। मुंतहा ने कहा, तो उनका पैसा भी तो सरदार लोग ही खाते हैं। तब उस औरत ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, सरदार लोगों का शहर में अपना कारोबार है, उनकी बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, वो लोग अपना काम करते हैं। यहाँ बस जद्दी पुश्ती हवेली होने की वजह से ठहरे हुए हैं। बड़े सरदार के सामने किसी का कोई फैसला नहीं रोकता, वो फैसला ही सबके हक में अच्छा करते हैं। तुम ये सब कुछ छोड़ो लड़की, घूमने फिरने आया है, अच्छी तरह यहाँ की वादियों से लुत्फानंदोज हो और अपने घर जाने की तैयारी पकड़ो, वरना यहाँ की तारीख में उलझ कर रह गया तो यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। मुंतहा खामोश हो गई। औरत उठकर चली गई। उसके जाने के बाद मुंतहा ने अपने बैग की छोटी सी जिप से कैमरा निकाला और उसमें बोली, मैं तो यहाँ से जाऊंगी,
लेकिन यहाँ की सरदारी की धज्जियां उड़ा कर जाऊंगी। अगर ये लोग इतने ही लोगों के हमदर्द हैं तो गांव की सड़कें कच्ची क्यों हैं? इनके लैंड क्रूजर कैसी फराटे मारती गांव में आती हैं? इन कमअकल लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि ये इन्हीं की दौलत पर लोग ऐश कर रहे हैं, इन्हीं की दौलत जिन्होंने शहर में इतने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं। अहमक लोग समझ ही नहीं रहे कि ये लोग इनसे फायदा उठा रहे हैं, उन्हें अपना हमदर्द समझ रहे हैं। ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान सबसे पहले अपना अच्छा सोचता है, बाद में किसी और का। कोई भी आज के दौर में इतना फरिश्ता सिफत इंसान नहीं जो दूसरों के लिए मुसीबतें उठाए। लेकिन मैं इस भरम से इन लोगों को निकाल कर रहूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। मुंतहा खामोशी से यहां से वहां कमरे में कोई जगह तलाश करने लगी। अपना कैमरा वहां छुपाने के बाद वो खामोशी से लेट गई थी और फकत यही सोच रही थी कि आगे की हिकमत अमली किस तरह करे। अगर इन लोगों का पर्दाफाश करना है तो इन लोगों के साथ मिलकर उस जिरगे का हिस्सा भी बनना होगा। मुंतहा ने सोच लिया था कि वो अगले होने वाले जिरगे में जरूर शामिल होगी और उसकी फुटेज अपने कैमरे में कैप्चर करके यहां से निकल जाएगी। सारे रास्ते में अच्छा सा आर्टिकल लिखकर पहली फुर्सत में शहर पहुंचते ही वो आर्टिकल शाया कर देगी, ताकि लोगों को जल्द अज जल्द इस गांव की और यहाँ के सफाक लोगों की हकीकत पता चल सके। मुंतहा अपने ताने बाने सोच रही थी। ये सोचे समझे बगैर कि आने वाले वक्त का उसे इल्म नहीं था। उस वक्त सवात में तूफानी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सर्दी ज्यादा थी और लोग अपने घरों में घुसकर बैठे हुए थे। जले पांव की बिल्ली की तरह वो घर में यहां से वहां चक्कर काट रही थी, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उसकी पुप्पो ने कहा था कि वो बाहर जाएगी तो किसके साथ बैठेगी? तमाम लड़कियां अपने अपने घरों में बैठी हैं, बाहर निकलना नामुमकिन है। मुंतहा परेशान सी वापस बैठ गई। वो यहां से किसी तरह बाहर निकलती, उसके लिए यह इंतहाई जरूरी था। वो पूरा एक दिन जाया नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मजबूरी थी। मुंतहा खिड़की में बैठे हुए बाहर के मनाजिर देख रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि वो लड़की जिसको कल जिरगे में फैसला सुनाया गया था, खामोशी से गली की ओट में होते इलाके से बाहर निकल रही थी। मुंतहा ने इधर उधर देखा, किसी को ना पाकर खुद भी अपनी चादर ओढ़कर उस लड़की के पीछे निकल चुकी थी। मुंतहा को लगा कि वो लड़की यहां से भाग रही है, लेकिन कोने के करीब जाकर उस लड़की ने जैसे ही कुएं में छलांग लगाई तो मुंतहा चीखती हुई चिल्लाती हुई उस जानिब बढ़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की वक्त के 100वें हिस्से में कुएं में समाती चली गई। उसकी आवाज़ों को सुनकर गांव के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। मुंतहा ने बताया कि लड़की कूद चुकी है। लोगों ने निकाला तो उस वक्त वो लड़की मर चुकी थी। ये सदमा मुंतहा के लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले यकीन था। अचानक मुंतहा सदमे से बेहोश हो चुकी थी। जब दोबारा होश आया तो उसने अपने आप को घर की चारपाई पर पाया। दाएं बाएं देखा तो कोई भी नहीं था। मुंतहा उठी और उसके सर में दर्द महसूस हुआ तो उसने अपना सर थाम लिया। तभी उसकी सहेलियां गुलपरी और बारबीना उसके पास बैठे। मुंतहा उन्हें हैरत से देख रही थी। फिर बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तब उन्होंने बताया, तुम बेहोश हो गया था कुएं वाले वाकये के बाद। मुंतहा को अचानक याद आया कि कैसे उस लड़की ने खुदकुशी की थी। मुंतहा समझी कि वो सिर्फ यहां से भागने की कोशिश कर रही है। तभी बारबीना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की लड़कियां भाग नहीं सकती, हमारे पर कटे हुए हैं। यहाँ की रिवायत में हमें जकड़ा हुआ है। तुम बताओ, किसका दिल नहीं करता कि वो यहाँ से बाहर जाए, दुनिया घूमे, अच्छी तालीम हासिल करे? लेकिन हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। ऐसी सज़ा हमारा मुकद्दर ठहरती है, जैसे कि परीशे के साथ हुआ है। अब तुम इस बारे में ना सोचो और अपनी तबीयत खराब मत करो, ये तो यहाँ का रोज़ का काम है। मुंतहा ने हैरत से उसको देखा और बोली, क्या मतलब, यहाँ ऐसी खुदकुशियाँ रोज़ होती हैं? उसने देखा और बोली, हाँ, यहाँ जानवरों से भी ज़्यादा लोग मरते हैं। कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों की वजह से मरते हैं और कुछ लोग गुस्ताखियों की वजह से। यहाँ का निज़ाम यही है कि लोगों को सज़ाएं दी जाती हैं, वो लोग मरना कबूल करते हैं।
जिस लड़के से परीशे मोहब्बत करता है वो दूसरे कबीले का है और परीशे दूसरे कबीले का। उन लोगों ने यहाँ से फरार होने का रास्ता सोचा तो बीच में ही पकड़े गए, और अब एक तुम्हारा क्या, दूसरा भी अनकरीब मर जाएगा। जबकि परीशे की शादी में जिस तरह होना पाई है वो एक बुढ़ा आदमी है जिसके 2 जवान बेटे हैं और उसने खबासत कूट कूट कर भरी है। उसका नज़र भी अच्छा नहीं। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से अच्छा परीशे ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। परीशे उससे बहुत मोहब्बत करता था, असफंदियार से, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। उन दोनों ने गुस्से से उन्हें देखा और बोले, क्यों नहीं किया जा सकता? उन लोगों को एक साथ बोलना चाहिए था कि हम सबकी ज़िंदगी का फैसला क्यों कर देते हैं। अब वो मर गया तो तुम ये बताओ कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? यही सरदार ना, जिसने फैसला किया था। इस जिरगे में आकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ आकर रहोगी, सारी मालूमात हासिल करने के बाद इस कैमरे में रिकॉर्ड करके रखोगी और यहाँ से जाने के बाद हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दोगी। हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता लड़की, तुम्हें इस चीज़ का बहुत बुरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि मुंतहा ने गुस्से से सुल्तान खानजादा को देखा और आंखों में आंखें डालकर बोली, खमियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जो तुम फिरौन बने बैठे हो ना, इस चीज़ को तुम समझते क्या हो? खुद को किसी भी इंसान की जिंदगी का फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? जबकि सरदार आंखों में तैश लिए उस 5 फुट की लड़की को देख रहा था जो कि अपनी जबान से उसके गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। तभी जनान खाने से एक औरत की आवाज़ आई और उसने कहा, लड़की तुम अपनी ज़बान को काबू में रखो। जब उस लड़की में जिसका नाम मुंतहा था बोली, खबरदार, अगर बीच में कोई भी बोला मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी सुल्तान खानजादा हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम हमें धमकियाँ दोगी? तुम्हें पता भी है तुम सवात की वादी से निकल कर नहीं जा सकती। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सही कहा तुमने, मैं फिरौन हूँ। अब तुम्हें फिरौन बनकर दिखाता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है ना तो तुम यहाँ से निकल कर दिखाओ और यकीन मानो कि मेरे इलाके का कोई भी इंसान तुम्हें नहीं रोकेगा। मुंतहा ने उसे देखा। मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम कितने बड़े सफाक हो, मगर तुम्हारा पाला मुंतहा खान से पड़ा है। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ सुल्तान खानजादा। ऐसे लहजे पर सरदार बोल उठा और आगे बढ़कर मुंतहा के दोनों बाजू जगड़ते बोला, तुम्हें मैं आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, मेरा नाम अदब से लो वरना। मुंतहा आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों? अभी सुल्तान कुछ करता जब भी किसी ने मुंतहा को पीछे किया और खुद सुल्तान के सामने आ गया। सुल्तान ने जब दाजी को देखा तो खुद नजरें झुकाकर बोला, दाजी यही वो लड़की है जो कि जिरगे की वीडियो बनाकर ले जा रही थी और शहर में जाकर हमारा तमाशा लगाने वाली थी। वो तो मेरे मुलाजिम ने इस पर नजर रखी हुई थी, उसी ने बता दिया। हमारी इज्जत महफूज है। मुंतहा ने कहा, देखें दादी, मैं नहीं जानती आप क्या हैं और क्या नहीं, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस इस जहालत के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। मुंतहा, इससे पहले कि कोई और बात करती, सुल्तान एक बार फिर आगे बढ़ा तो दाजी ने उसे मुंतहा से दूर करते कहा, तुम्हें पता भी है तुम ये जो भाग भाग कर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ये कौन है? ये तुम्हारे बचपन की मंग, तुम्हारे निकाह में है ये लड़की। जबकि मुंतहा तो आंखें फाड़े दाजी की जानिब देख रही थी। सुल्तान खानजादा ने हैरत से दाजी को देखा और बोला, क्या हो गया है, आप ठीक हैं? तभी मुंतहा ने होश की दुनिया में वापस आते कैमरा उनकी जानिब बढ़ाया और बोली, ये देखें, आप ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दें और फजूल की कोई भी रिश्तेदारी कायम करने की कोशिश ना करें। मुझे यहाँ से जाने दें। लेकिन दाजी ने आगे बढ़कर मुस्कुराकर मुंतहा के सर पर हाथ रखा और उन्होंने फिर कहा, तुम्हें अब यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। क्यों? बीजान को वहां पागल होने के करीब थी। एकदम से चक्कर आ गया था। इससे पहले कि वो जमीन बोझ होती, सुल्तान खानजादा ने मुंतहा को बाजू से पकड़कर सहारा दिया
منتہا نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے نکالا اور بی جان کی جانب بڑھ کر بولی، بی جان آپ سن رہی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بی جان نے منتہا کا ہاتھ تھاما اور بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تمہاری تربیت کے لیے شہر میں رہ رہی تھی کیونکہ تمہاری ماں کی خواہش تھی۔ تمہارے والد صاحب جو کہ سلطان خانزادہ کی تایا ہیں، انہوں نے شہر میں شادی کر لی تھی تو ان کی بیوی نے دھوکہ دیا۔ تمہارے والد نے اپنے خاندان والوں سے اس بات کو چھپاتے رہے اور اندر اندر خود کو زخم لگا لیا، جبکہ سردار صاحب اس بات سے واقف رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ دل پر لیا اور اب میں ان کی اولاد یعنی کہ تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ تم ان سب کا خون ہو، یہ تمہارا خاندان ہے۔ لیکن 7 سال کی عمر میں تمہارا نکاح سلطان کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ میں تمہیں خود ہی حقیقت بتانے والی تھی، لیکن تم میری سنتی کب ہو؟ منتہا نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، دیکھیں بی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہوں، لیکن میں اپنی زندگی ایسے نہیں گزار سکتی اس جیسے انسان کے ساتھ جس کو میں جانتی بھی نہیں ٹھیک سے۔ دوسری بات، میں اس جہالت کے خلاف بول رہی ہوں اور آپ مجھے یہ خبر سنا رہی ہیں کہ میں اسی کا حصہ ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایسے سفاک لوگوں کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ مجھے یہاں سے جانے دے۔ منتہا یہ بات کہہ کر جانے لگی تو داجی نے اس کے راستے میں حائل ہو کر کہا، ٹھیک ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے تمہاری زندگی کا فیصلہ کر دیا، لیکن بس ایک بار اپنے بابا کا سوچو جس نے تمہیں سلطان کے نام کیا تھا۔ اس کا حق تھا تم پر۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ اس نے فضول میں کیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ تمہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچانا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جہالت ہے؟ یہ تمہارا غلط نظریہ ہے۔ تم لوگوں کو نہیں جانتی، ایک طرف کی بات سنتی ہو۔ جس لڑکی کی وجہ سے تم ہم سے اتنی بدگمان ہو رہی ہو وہ اصل میں بہت ہی غلط تھی، اور وہ خود نہیں مری، اس کے بھائی اور باپ نے اس کو ختم کیا ہے۔ اس کی حقیقت چھپانے کے لیے اسے خودکشی کا نام دے دیا گیا، کیونکہ غیرت مردوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لڑکی سے جب اس کی مرضی پوچھی گئی تو اس نے جھوٹا انکار کر دیا اور لڑکے کو گناہ کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ یہ حقیقت ہم نے جرگے سے چھپائی۔ منتہا حیرت سے بولی، جو کچھ بھی ہو لیکن مجھے یہاں سے جانا ہے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ سلطان نے کہا، لیکن تم جاؤ گی کہاں؟ منتہا نے کہا، تم سے مطلب؟ تبھی بی جان نے کہا، اگر تمہیں اپنے باپ سے ذرا بھی محبت ہے تو خاموشی سے ان کی مرضی کا احترام کرو۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی پر تو بہت روپ آیا ہے۔ منتہا اس وقت سرخ رنگ کے لہنگے میں بیٹھی ہوئی تھی جب بی جان اس کے کمرے میں آئی۔ منتہا نے انہیں دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ بی جان مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ بی جان، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بی جان نے کہا، منتہا تم سمجھ نہیں رہی، سلطان سے اچھا انسان تمہیں کوئی نہیں مل سکتا، اور اس علاقے میں تم لوگوں کے بہت دشمن ہیں۔ منتہا نے کہا، تو دشمن ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں نا؟ بی جان نے کہا، اگر ابھی بھی تم غلط سمجھ رہی ہو، اگر کسی چیز کو، کسی روایت کو بدلنا ہوتا تو پہلے اس میں ڈھلنا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ تم یہاں رہو گی تو ان لوگوں کو شعور دے سکو گی، اور تم ان لوگوں کا خون ہو۔ تمہارے باپ نے یہ خط تمہارے لیے چھوڑا تھا جس کو پڑھ کر تم رضامند ہوئی ہو۔ وہ تمہیں اپنے خاندان سے جڑا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ میری بچی، دل میں کوئی بھی وہم لائے بغیر اس رشتے کی شروعات کرو۔ منتہا نے بی جان کی جانب دیکھا اور بولی، لیکن بی جان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بی جان مسکرائیں اور بولی، بیٹا یہ فطری ڈر ہے، تم بس اچھا سوچو اور حالات سے سمجھوتا کرو، خوش رہنے کی کوشش کرو۔ منتہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جتنی بدتمیزی تم مجھ سے کر چکی ہو، دل تو نہیں کر رہا تم سے بات بھی کروں۔ تو نہ کرو، میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے بات کرو؟ منتہا نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تب سلطان مسکراتے ہوئے بولا، تم ہر وقت جنگلی بلی کیوں بنی رہتی ہو؟
منتہا نے کہا مجھ سے فری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ سلطان نے کہا فری نہیں ہو رہا، بس دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب تم اپنے شوہر سے دوستی بھی نہیں کر سکتی؟ منتہا نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں اس رشتے کو موقع دینا چاہتی ہوں، تبھی اس وقت یہاں موجود ہوں۔ لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ سلطان نے کہا ہاں بتاؤ کیا وعدہ؟ منتہا نے کہا یہ وعدہ کہ تم میری مدد کرو گے اس گاؤں کی روایت کو بدلنے کے لیے۔ تم یہاں کے سردار ہو نا؟ تبھی سلطان نے کہا تم بھی تو سردارنی ہو، میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ منتہا نے کہا تم میری بات کو اہمیت دو گے؟ بولو۔ سلطان نے کہا بالکل، تمہیں زندگی میں مقام دیا ہے، جگہ دی ہے، اب آگے چل کر تمہارا ساتھ بھی دوں گا۔ منتہا نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تم سے دوستی کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ دونوں ہی کہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ زندگی کب کہاں کس طرح کا رخ بدل لے کسی کو کوئی خبر نہیں، بس سب اپنی انجانی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔